Good morning, student. Good morning. Today in chemistry class, you're most welcome. And you know that we are doing revision. And in revision class, we have completed what is solution, different types of solution, and solubility, factor affecting solubility, Henry's law, Raoult's law, positive negative deviation from the Raoult's law, ideal non-ideal solution, and azeotrophs, minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. Now we are looking here colligative properties, and in colligative properties we are studying relative lowering of vapor pressure. As we know that there are four types of the colligative properties. First one is the relative lowering of vapor pressure. Second one is the elevation in boiling point. Third one is the depression in freezing point, and last fourth is the osmotic pressure. Among these colligative properties, we are discussing about the relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, and we saw that relative lowering of vapor pressure is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the solvent in pure state. Okay. Now see, yes, relative lowering of vapor pressure first of all we will see here lowering of vapor pressure. This one is the lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. Delta P equal to P minus P naught. P minus P naught. Lowering of vapor pressure, sorry. P naught minus P. This is the lowering of vapor pressure. Now relative lowering of vapor pressure equal to delta P upon P naught. Okay. Now you can write here P naught minus P upon, you can write here S for the solution. Okay. Then P naught, where P naught is the vapor pressure of solvent, vapor pressure of solvent, and P is the vapor pressure of solution.
solution, and you can write here PS. Everything is clear? Okay. This is the relative lowering of vapor pressure. As you know that we are studying about the colligative properties, and which depends upon the number of solute particles present in the solution. So this lowering of vapor pressure is due to the presence of non-volatile solute in the solution. Okay, this lowering of vapor pressure is due to the presence of non-volatile solute in the solution. Okay, thus the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. Since the colligative property depends upon the number of solute particles, so the relative lowering of vapor pressure is also depend upon the number of solute particles in the solution. Therefore, relative lowering of vapor pressure will be equal to the mole fraction of solute. ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिफरेंशियल वगैरह डिस्कस कर लिया था। आज फार्मूला देख रहे हैं, और हम यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पहले हमने देखा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट के प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और यहाँ पे हमारा पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये पी एस हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी फार्मूले को हम चेंज करके लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू। ओके, where x2 is the mole fraction of solute particles। यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या लेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन लेंगे, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन्हीं के ऊपर ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमेशा हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स लेंगे। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे ये मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, x2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो वी कैन राइट हियर p नॉट माइनस पी एस अपॉन p नॉट इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, सपोज दिस इज वन इक्वेशन वन, देन your equation is 2, this one is the equation 2। ओके, अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर
N1 is greater than, very greater than N2, then formula will be P naught minus Ps upon P naught equal to N1 upon N2. Such solution is known as dilute solution. Dilute solution. Okay, dilute solution. ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम एक चीज और भी देख सकते हैं, एक फार्मूले में ऊपर हम इसको इरेज कर देते हैं। N1 N2 क्या है, पहले ये भी लिख देते हैं। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute N2 is the number of mole of solute and N1 is the number of moles of solvent. ओके, अब इस फार्मूले को इरेज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, नाउ you know that number of mole is equal to weight upon molar mass. This one is the weight in gram, and this one is the molar mass. ओके, तो हम यहाँ पे N1 is equal to W1 upon M1 ले सकते हैं और N2 is equal to W2 upon M2। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 M1। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। पहले हमने मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो फॉर द सॉल्वेंट अगर हम देखें, ये हमारा किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए, और ये हमारा है सॉल्यूट के लिए। ठीक है, सॉल्यूट के लिए। तो इस तरह से N1 इक्वल टू W1 अपन M1, N2 इक्वल टू W2 अपन M2। यहाँ से X2 इक्वल टू N2 अपन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, और इस फार्मूले में हमने मोलर मास निकाल लिया। तो अगर हमें सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है तो हम इस फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम इरेज करते हैं। ये मैंने इरेज कर दिया, ये भी इरेज कर दिया। तो यहाँ से हम अगर M2 निकालेंगे, पहले तो इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, PS अपॉन P नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। तो हम यहाँ से M2 निकाल सकते हैं। M2 इक्वल टू
W2 into M1 upon W1 is equal to into 1 by P naught minus PS अपॉन P नॉट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला। तो इस तरह से हम यहाँ से सॉल्यूट का मास भी, मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। आई बात समझे? तो ये ऑल अबाउट द हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जान गए। और अगर इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो बस इसको ऊपर लेते चले जाएंगे। ठीक है, W2 इंटू M2 इंटू P नॉट अपॉन W1 और यहाँ पे P नॉट माइनस PS, P नॉट माइनस PS। ठीक है, तो ये हमारा M2 इसको हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है कि ये जान गए कि कैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है कोरिलेटिव प्रॉपर्टी है, और किस तरह से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मदद से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिटरमाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे। जल्दी करिए। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, E B P, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अगर जैसे वाटर है 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, ठीक है, सपोज वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। when you added non-volatile solute to the solution, then a new bond formed between the water molecule and non-volatile solute, due to which boiling point of the solution increases। जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो वो क्या होता है कि एक नया बॉन्ड बन जाता है। किसके बीच में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? वहाँ पे बढ़ जाएगा। पहले अगर 100 डिग्री पे कर रहा था तो अब वो 101, 102, 103 कुछ भी, मतलब कितना भी बढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमने क्या ऐड किया है, कितना ऐड किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जानने से पहले हम ये जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, पहले जानेंगे क्या कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तब तो फिर जानेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। चलिए
तो इसमें हम पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब सपोज कह सकते हैं कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने जो है वाटर भर रखा है। और इस कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा कि ये पार्टिकल्स उड़ उड़ के ऊपर की ओर आएंगे, सरफेस पे आएंगे, ठीक है, और फिर ये ऊपर की ओर जाएंगे। ये ऊपर की ओर आएंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये कुछ समय के बाद ये सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये जो सरफेस है, वाटर सरफेस, इस पे प्रेशर क्रिएट करेंगे। और जब ये प्रेशर, जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जब ये वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब हम किसी भी कंटेनर के अंदर हम प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट लेके हीट करते हैं तो पहले वो धीरे धीरे जब हीट होता है तो उसके पार्टिकल सरफेस पे आना शुरू करते हैं, सरफेस से फिर उड़ना शुरू करते हैं। अब स्केप तो नहीं कर सकते हैं अगर हमारा क्लोज कंटेनर है तो। अब इसमें क्या होगा कि जो वेपर है बना, वो आके सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और जब वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो हमारा होगा वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लेते हैं ना, उस 1 atm के जब बराबर होगा तब क्या होगा, तुरंत जो है कि वो बॉयल करना शुरू कर देगा, तेजी से पार्टिकल सरफेस छोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, become equal to the atmospheric pressure। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं the temperature at which vapor pressure of the temperature at which vapor pressure of pure solvent become equal to atmospheric pressure
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। And particles of solvent start to leave surface। ओके, तो दिस is known as boiling point। इसको हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस भी टेम्परेचर पे किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे जो सरफेस है सॉल्वेंट का, उससे पार्टिकल्स ऊपर की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर and particles of pure solvent start to leave the surface of the solvent. This is known as boiling point। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा जो मुद्दा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप बॉइलिंग पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन अगर पूछ दे, अगर कभी, इसमें हम आते हैं पहले व्हाट डू यू मीन बाय by 100 degree centigrade boiling point of water। ये क्वेश्चन है, क्या मतलब है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका ये होगा, इट मीन्स at 100 degree centigrade vapor pressure of water become 1 atmospheric pressure। and particles of water start to leave surface। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है बिकम इक्वल टू द और बिकम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं सरफेस को छोड़ना। ये इसका मतलब होता है। आई बात समझ में?
अब इसमें हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अब इसके बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये जान लिया कि कोई भी अगर एक सॉल्वेंट का प्योर टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब कि उसी टेम्परेचर पे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो है कि बॉइलिंग पॉइंट जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है, जो हमने टॉपिक अभी ख़त्म किया। और इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कैसे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखिएगा एक बार, और फिर कल हम इसको आपको क्लियर कर देंगे। हैव अ नाइस डे।